ڈاکٹر شاہ محمد مری 1954 کو کولو کے علاقے ماوند میں پیدا ہوئے۔ ان کی دو ڈیٹ آف برتھ پائی جاتی ہیں، یکم اپریل جسے فرسٹ اپریل جسے اپریل فول بھی کہتے ہیں، اور 23 نومبر۔ ان کے آفیشیل ڈاکیومنٹس پہ یکم اپریل کی ہی ڈیٹ آف برتھ پائی جاتی ہے، لیکن وہ جسے خود مستند سمجھتے ہیں وہ 23 نومبر کی تاریخ ہے، جو کہیں پر ان کے کسی نے لکھی ہوئی ہے اور وہ اسی کو مستند سمجھتے ہیں، اسی لیے اسی تاریخ کو ہی دوست احباب جمع ہوتے ہیں کوئٹہ میں اور ان کی سالگرہ مناتے ہیں۔ 1954 کو پیدا ہونے والے ہمارے یہ جینیس اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے مصنف کے طور پر موجود ہیں، اور شاید اس قدر متنوع کام شاید ہی کسی مصنف کے حصے میں ہو جتنا کہ شاہ محمد مری صاحب نے کیا ہے۔ آج کے حال احوال میں ہم مختصراً ان کی زندگی کا پس منظر اور بالخصوص ان کے تخلیقی کام کے حوالے سے بات کریں گے۔ شاہ محمد مری صاحب کی ابتدائی تعلیم ان کے اپنے علاقے میں ہوئی، پھر سبی میں انہوں نے ایف ایس سی کی، اور پھر بعد ازاں وہ بولان میڈیکل کالج آ گئے اور وہیں سے انہوں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا سیاسی زندگی کا طالب علمی کے زمانے میں سیاسی زندگی کا آغاز جمعیت علماء اسلام کی اسٹوڈنٹ ونگ سے ہوا، جو بہت کم عرصے تک رہے اور پھر کچھ عرصہ بی ایس او میں بھی رہے۔ اس کے بعد سوشلسٹ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ساتھ ان کا تعلق بنا، سی آر اسلم صاحب کی طالب علمی میں رہے، شاگردی میں رہے، اور پھر وہیں سے ان کی سیاسی تربیت کا آغاز ہوا۔ بالخصوص جب وہ اپنی میڈیکل کی تعلیم کے سلسلے میں بعد ازاں جب وہ ایم فل کرنے کے سلسلے میں لاہور چلے گئے 80s کے زمانے میں، اور وہاں پر نہ صرف ان کی شاگردی میں رہے سی آر اسلم صاحب کی، بلکہ ان کا جتنا لکھنے پڑھنے کا کام تھا، بالخصوص ان کا جو پرچہ چھپتا تھا عوامی جمہوریت کے نام سے، اس کی پبلشنگ، اس کی پرنٹنگ، اس کی چھپائی، اس کی مارکیٹنگ، اس کا لکھنا، اس سب میں یہ شامل رہے۔ اور وہیں سے ان کی لکھنے پڑھنے کی بھی تربیت کا آغاز ہوا، سیاسی تربیت کا بھی آغاز ہوا۔ جو پہلا کام انہوں نے کیا لکھنے کا ایک طرح سے، وہ ترجمے کا کام تھا، اور وہ فیڈرل کاسٹرو کا ایک طویل انٹرویو ہے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے، اور پھر یہی ابھی حال ہی میں اسی سال اس کی دوسری اشاعت ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ 80s کے ابتدائی برسوں میں یا شاید 70s کی دہائی کے اواخر میں شائع ہوا۔ یہ بہت ہی مختصر سا ایک کتابچہ ہے۔ اس کے بعد جو ان کا بڑا کام تھا وہ ناول ہے ہاورڈ فاسٹ کا اسپارٹیکس، جو ان کا اپنا بھی پسندیدہ ناول ہے اور بہت ہی شاہکار ناول سمجھا جاتا ہے، ایک شاہکار کتاب سمجھی جاتی ہے تخلیقی ادب کے حوالے سے۔ دنیا کی بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو ایک استوار شائع ہوتا رہا اور بعد ازاں کتابی صورت میں بھی چھپا۔ اب اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، سنگت اکیڈمی نے خود اس کے 3-4 ایڈیشن چھاپے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ ان کا جو ابتدائی کام ہے وہ یہی تراجم کا تھا، لیکن تراجم میں بھی فوکسڈ کام ہے، صرف اور صرف پروگریسو لٹریچر کا، مارکسسٹ لٹریچر کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب واپس آئے کوئٹہ 90s میں، تو اس زمانے میں جو انہوں نے پہلی ایک طرح سے کتاب آئی ان کی، وہ تاریخ پر تھی، اور وہ تھی بلوچ قوم عہد قدیم سے عصر جدید تک۔ یہ پہلا ان کا پہلا تخلیقی بڑا کام تھا شاید۔ اور پھر یہی کتاب آگے چل کر کئی حصوں میں تقسیم ہوئی، اس کو انہوں نے ریوائز کیا، اور پھر ریوائز ہوتے ہوتے یہ آج 9 جلدوں تک پھیل چکی ہے، جس میں سے اس کی کوئی 7-8 جلدیں چھپ چکی ہیں، ایک آدھ جلد رہتی ہے۔ اب اس کا نام ہے پیپلز ہسٹری آف بلوچستان۔ یہ ان کے تخلیقی کام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو تاریخ کے حوالے سے ہے، اور اس کی 7 جلدیں جیسا میں نے عرض کیا چھپ چکی ہیں، 8 جلدیں اور ایک جلد ان کی بھی زیر تکمیل ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بلوچ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے پیپل ہسٹری کے نام سے، کہ پہلی دفعہ عوام کی تاریخ لکھی گئی۔ اس سے پہلے بادشاہوں کی تاریخیں اکثر لکھی جاتی تھی۔ اچھا، اس کتاب کے اوپر جب یہ پہلی دفعہ جب اس کا پہلا حصہ شائع ہوا تھا مہر گڑھ سے ریاست کی تشکیل تک، تو اس پر کئی سوالات بھی ہوئے، تنقید بھی ہوئی، اور اب بھی یہ تنقید ہوتی ہے شاہ محمد مری صاحب کے اوپر کہ وہ مہر گڑھ میں بھی انہوں نے بلوچ کو جا کر آباد کر دیا۔ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید ان لوگوں کی طرف سے ہوگا جنہوں نے یا تو نہ پڑھا ہو اس ساری سیریز کو، یا سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ شاہ محمد مری صاحب کا ایک کلیم بالکل نہیں ہے کہ جو مہر گڑھ ہے 7000 سالہ قدیم تاریخ ہماری اس خطے کی، وہ شروع وہاں سے کرتے ہیں بلوچستان کی یا بلوچ کی تاریخ کو، لیکن اس بنیادی کلیم یہ نہیں ہے کتاب میں کہ وہاں پر بلوچ آباد تھا۔
क्लेम ये है कि वहाँ पर जो भी था वो हमारे आबा व अजदाद थे। हम यहाँ पर कब आए हमें अब तक नहीं पता, अब तक साइंस ने ये डिस्कवर नहीं किया, या हमारा बतौर कौम डीएनए हो जाए तो पता चले कि हम कहाँ से हैं बुनियादी तौर पर। लेकिन इससे पहले थ्योरीज़ थी, और वो भी ख़याली बातें थी मुख्तलिफ़ किस्म की, या तो मुस्तशरिकीन ने की थी या हमारे अपने लिखने वालों ने भी ज़्यादातर अंग्रेज़ी से या फिर फ़ारसी में जो लिखा गया था बलोच तारीख़ के मुतल्लिक़ उससे इस्तिफ़ादा किया था। और वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात थे, अलबुर्ज़ से आए होंगे, हज़रत हुसैन के काफ़िले से आए थे कुछ लोग, अरब से आए थे, हलब से आए थे, ये कि मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ थी। जबकि जो मेहरगढ़ है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसको साइंसी तौर पर बाकायदा दरियाफ्त किया गया है, इसलिए उनका एक क्लेम ये है कि वहाँ पर जो भी इंसान था, हमें उसकी नस्ल का नहीं पता, लेकिन जो भी था वो हमारे आबा व अजदाद थे, हम उनको अपना क्लेम करते हैं, इसलिए हम उन्हें बलोच कहते हैं। क्योंकि अब मौजूदा जो जोग्राफिया है उसमें जो भी रहता है इस धरती के ऊपर, हम उसे बलोच सियासी इत्तेहादिये का हिस्सा समझते हैं, इसलिए हम उसे बलोच कहते हैं। नस्ल का हमें नहीं पता कि वो कोई किसी भी नस्ल से हो सकते हैं, वो हमारे अपने थे। यहाँ से उन्होंने थ्योरी शुरू की और फिर वो उसे आज के तक लेकर आते हैं। जो आखिरी किताब इस सिलसिले की आई है वो कलात स्टेट नेशनल पार्टी के हवाले से है, जो 1948 तक कायम रही, कलात स्टेट की सबसे बड़ी, एक तरह से सबसे पहली और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी। आखिरी हिस्सा जो कि करंट सिचुएशन पर है, यानी 48 के बाद से लेकर मौजूदा है तक, वो अभी ज़ेर तकमील है। ये एक हिस्सा है उनके तख्लीकी काम का। और दूसरा जो बड़ा काम शाह नूरी साहब के क्रेडिट पर है वो उशाक के काफ़िले के नाम से एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ का सिलसिला शुरू हुआ था एक तर्जुमे से ही। इन्होंने एक किताब तर्जुमा की थी, पत्थर की सिल पर नाम। ये रशियन राइटर्स थे दो, उन्होंने एक काम किया था जो वहाँ के इनकलाब के दौरान काम करने वाले और जो यूटोपियन सोशलिस्ट से लेकर 1917 के इनकलाब तक जो बड़ी-बड़ी कुछ शख्सियात थे जो इनकलाबी उसमें तहरीक में शामिल रहे, उनके मुख्तसर खाके उस किताब के अंदर। ये किताब तर्जुमा हुई तो वहीं से उन्हें ये आइडिया आया कि ये इस तर्ज पर तो अपने खित्ते के जो हमारे इनकलाबी लोग थे उनकी भी बायोग्राफी इस तरह से नहीं लिखी गई जो कि लिखी जानी चाहिए। इसलिए ये फिर सिलसिला उन्होंने उशाक के काफ़िले के नाम से शुरू किया, और इसकी शुरू जब हुआ था तो 10 किताबें बननी थी, फिर ये 15, 20, 25 और अब ये 32 किताबों का सिलसिला बन चुका है, जिसमें से तकरीबन सब छप चुकी है सिवाय 2-3 किताबों के जो कि ज़ेरे तबाह हैं या ज़ेर तकमील कह लें। बाकी तकरीबन सब छप चुकी हैं इस सिलसिले की किताबें। और इसका सिलसिला यूँ है कि तकरीबन आप समझ लें कुछ 50% हिस्सा बलूचिस्तान के की शख्सियात पर है, 25% हिस्सा इस बड़े सग़ीर की शख्सियात पर, और बाकी 25% आलमी सतह की जो प्रोग्रेसिव शख्सियात हैं, जिसमें यूटोपियन सोशलिस्ट से लेकर जो मार्क्सी तहरीक के लोग रहे वो भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर इसका पहली जो जिल्द है वो मज़दक से शुरू होती है, जो कि ईरानी एक यूटोपियन सोशलिस्ट जिनको कहा जा सकता है एक तरह से। इसी तरह इसमें मस्तौकली भी शामिल हैं, इसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भी शामिल हैं, शाह इनायत भी शामिल हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने समाज की भलाई बेहतरी के लिए रोशन ख़याल किस्म की फ़िक्र की तरवीज की, उन सब को इस फ़हरिस्त में शामिल किया गया है। और इसमें फिर खाके सवाने भी हैं, खाके भी हैं, कुछ किताबें एक ही शख्सियत के ऊपर हैं, कुछ किताबों में उनके मुआसरीन को भी शामिल किया गया है। तो ये सिर्फ 32 शख्सियात नहीं हैं, बल्कि कुल मिलाकर ये कोई 50 से ज़्यादा शख्सियात पर मुश्तमिल सीरीज़ बनती है। तीसरा बड़ा काम उनका ज़ुबान व अदब के हवाले से है। बलोची ज़ुबान व अदब की तारीख़ कोई 800 सफ़हात की किताब है, जो 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसको यकजा करके गोशा अदब ने 2016 में शाया किया था। अब ये दोबारा ज़ेर तरतीब है, उम्मीद है कि जल्दी इसकी नई इशाअत भी शाया होगी। इसी तरह एक और काम इन्होंने अपने मुआसरीन पर लिखने का भी किया है, जो कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, बहुत कम लिखा जाता है। अपने मुआसिर अहद के जो लोग जो उनके करीब रहे, जो उनके साथ रहे, उन पर उन्होंने वफ़ा का तज़किरा के नाम से लिखा है। ये भी कोई 1000 सफ़हात बनते हैं। अब ये 3 किताबें बनेंगी या 4 किताबें जिल्दें उसकी बनेंगी, जो कि एक दफ़ा शाया हो चुकी है अब, लेकिन ये दोबारा फिर से शाया होने जा रही है। बलोच ख़वातीन के हवाले से या बलूचिस्तान के अंदर जो औरतों की तहरीक है, उस पर पहले एक किताब 2005 में आई थी, बलोच समाज में औरत का मकाम, जो बड़ी मुतनाज़ा भी रही, इस पर शदीद तनकीद भी हुई। इस किताब को भी रिवाइज़ किया गया और अब ये औरतों की तहरीक के नाम से उसी जो पीपल हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान है, उसी की एक कड़ी बन चुकी है, उसी का एक हिस्सा बन चुकी है। शाह नूरी साहब का एक और काम जो डिस्कस नहीं होता एक तरह से, वो है उनकी सहाफ़त।
इन्होंने सहाफ़त बाक़ी सिर्फ़ रिसाले की इदारत नहीं है, एडिटरी नहीं है, यानी वो संगत रिसाला 1997 से शाया कर रहे हैं या उसकी इदारत कर रहे हैं, ये नहीं। बल्कि जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया था, वो जब लाहौर में थे तो अवामी जमहूरियत की पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, मार्केटिंग का सारा काम वो खुद देखते थे। तकरीबन वन मैन आर्मी के तौर पर ही वो काम कर रहे थे उस वक़्त। तो सहाफ़त जो उस ज़माने में 70s 80s में जो बुनियादी सहाफ़त होती थी, जर्नलिज़्म होती थी, जो क्लासिकल जर्नलिज़्म थी, उस सारे प्रोसेस से वो गुज़रे हैं और उसका हिस्सा रहे हैं। बाद अज़ां फिर जब क्वेटा वापस आए तो नोखे दौर जो बाबू शोरिश का छोड़ा हुआ विरसा था, उसको कुछ अरसा सँभाला, बल्कि तकरीबन एक दहाई तक उसको छापते रहे और फिर संगत का सिलसिला शुरू हुआ जो गुज़िश्ता 26 साल से तसलसल के साथ शाया हो रहा है। इसी तरह उनका एक और काम है जो कामी ज़ेर बहस आता है, इस उनकी सहाफ़ती काम की तरह ही, जो वो है तंज़ीमी काम उनका, ऑर्गनाइज़ेशनल वर्क, लोगों को जमा करना, तंज़ीम बनाना, तंज़ीम साज़ी करना, क्योंकि ख़ुद शुरू से तंज़ीमी उसका हिस्सा रहे सियासत का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर इसका, और ख़ुद इन्होंने फिर तंज़ीम साज़ी पर तवज्जो दी। जब वापस आए इस लाहौर से तो कोयटा में पहले लॉस चीदक के नाम से तंज़ीम बनाई, अब्दुल्ला जान जमालदीनी और उनके अहबाब के होते हुए सीनियर्स के साथ मिलकर उनकी सरबराही में कुछ अर्सा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन को फ़ाल रखने की कोशिश की, जो 1950 से बलूचिस्तान में मौजूद थी। उसके तसलसल को उन्होंने 2-3 बार कोशिश की कि उसको चलाया जाए, बलूचिस्तान में उसकी एक मज़बूत बुनियाद रखी जाए। फिर यही सिलसिला आगे बढ़कर 1997 में संगत अकेडमी ऑफ साइंसेस के नाम से कायम हुआ और आज तक ये इसी नाम से एक मज़बूत तंज़ीम के तौर पर, अभी कुछ माह पहले ही उसकी 10वीं कांग्रेस हुई है और अभी एक मज़बूत मुनज़्ज़म रोशन ख़याल और प्रोग्रेसिव तंज़ीम के तौर पर बलूचिस्तान के अंदर अपना वजूद रखती है। ये मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं उनकी शख्सियत के, जिनमें से सिर्फ़ तहरीर वाला तो हमें नज़र आता है, इसके अलावा लेकिन उनका तंज़ीमी काम, उनका सहाफ़ती काम और उनका सियासी काम, सियासी तंज़ीम बनाने की भी कोशिश की, जो बावजूद कामयाब शायद नहीं हो सकी, लेकिन सियासी तौर पर मुतहरिक रहते हैं हमा वक्त। और प्रोग्रेसिव सियासत का क्योंकि स्केल सिकुड़ चुका है बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस, इसलिए वो उस पर शायद अब इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड नहीं है किसी सियासी पार्टी बनाने की जानिब, लेकिन ख्वाब ये रखते हैं कि बलूचिस्तान में कभी एक तरक्की पसंद, एक प्रोग्रेसिव, अवाम दोस्त सियासी जमात का क़याम अमल में लाया जा सके। आज उनकी सालगिरह मनाई जा रही है 23 नवंबर 2023 को। उम्मीद है कि अगले बरस 70 साल हम उनकी 70वीं सालगिरह मना रहे होंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू सर।